mongering going on, things which are not based on fact. In fact, around 2 days ago, I got a message from one of the most respected and person from Leh that this particular video is being circulated in the media, and somebody who is claiming to be a public law officer of the government has uploaded this video on the social media. So when I saw that video, I was shocked that how can a government officer do this. Then I inquired from my officers that please find out the identity of this person, and later on it turned out that he is neither a public law officer nor he is a public servant, government servant, but he is a auto driver or some taxi driver or something like that. So this sort of impersonation is also illegal under law, and there are many such rumors being spread by people which we are identifying, that they are spreading the rumors which cause panic and fear in the minds of the public. So for the benefit of everybody, I will just read out the section 353 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which says that whoever makes dash publishes or circulates any statement dash comma false information comma rumor comma or report, including through electronic means, with intent to cause or which is likely to cause any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of India to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such, or with intent to cause, this is very relevant, clause B, 1B, with intent to cause or which is likely to cause fear or alarm to the public. This is very relevant. Which is likely to cause fear or alarm to the public or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the state or against the public tranquility. Then C says with intent to incite or which is likely to incite any class or community of persons to commit any offence against any other class or community shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. So my purpose of calling this conference is that rumor mongering which causes fear or alarm to the public is punishable with a punishment for 3 years or with fine or with both. So it's a crime, it's a well-defined offense. So this rumor mongering causes panic, it causes alarm, it causes consternation, it causes a potential situation where people may resort to certain action which may disturb the public order and their own well-being also. So we have to be very, very careful regarding these rumors. As informed citizens, we have to identify such people who spread these rumors. In this around 2 weeks ago, if I recall correctly, some big rumors were circulating in Kashmir Valley, and none of them had any base. This was discussed in the national media also, that something is going to happen and now something is going to happen, which was a very wild sort of a rumor. So similar in our Ladakh also, around 2 days ago, we also got very alarming and panic causing, fear causing rumors that something is happening, this huge thing is changing, something is going this way, something will go that way. So this is very, very alarming, and it creates panic, not only in the minds of the public but also in the minds of the lower class of officers who are not well informed. So this sort of rumor mongering, I would, section 353, I just wanted to, because public, unless they are informed of the law, then certainly then they will be very, very careful, and then this rumor mongering will not happen, because maybe people think it is a mischief, so let us do the mischief. But this is
mischief is fine as long as it does not affect the public order or doesn't bother the public or doesn't cause them public, the fear or alarm to the public. That is a word in the law. So this is what I just wanted to emphasize, that we are very strictly watching these elements who are spreading rumors, and we will take action under the law against rumor mongering, because it is not in the interest of the public. Now this is another rumor which I heard, is that some people, this rumor is also, it came to our notice that our elected bodies of both the councils are going to be dissolved. I was just shocked to even hear this. How can this be possible? And how can even somebody imagine it or discuss it? This is totally false and mischievous, because this is an invention of a very dangerous invention of somebody's mind, because it is, nobody can even think of it and nobody knows about it, but it is in the media being discussed, I am told. So it was very important for me. I requested the DGP Sahab that let us sit together and we address the public of Ladakh directly, that please be very assured that nothing is going to change, whether it is our elected institutions, whether it is our elected councils, anything. There is nobody. This is something which we just have learnt from the rumors only. So I just assure you that there is nothing like this. Public should not listen to these rumors, and they should be very careful. And if anybody knows that somebody is spreading the rumor, please inform the local SHO, please inform the local Naib Tahsildar, SDM, so that we can identify such people. This is very bad, and it causes, again I am reiterating, it causes fear or alarm to the public. So this is one thing, that LHDCs are our pride. LHDC Act is our pride. It has been there intact even after Reorganization Act. These councils we are strengthening them. They are the basis, the pivot around which the development of the districts happen. How can anybody think or even think of that this is going to be dissolved? Like in Kashmir also they were saying that this is going to happen, this is going to be made state, this is going to be made UT. I don't know how fertile the imagination is. But this is all mischievous, aimed at only causing the fear or alarm to the public. So I assure the people of Ladakh that there is no truth. Rather, our imaginations are not that fertile. I can't even think before I heard about this or just got input from our own intelligence agencies that this is going on. Second thing, I would like to brief my friends from media that last time when I addressed you, I mentioned that we are at present busy with the huge and massive recruitment drive. And the recruitment drive, it's my pleasure to announce here that the recruitment of the non-gazetted is being conducted by the respective district recruitment boards of Leh and Kargil, and also the UT level posts of the non-gazetted posts. It is being done by the Ladakh Subordinate Services Staff Selection Board. Earlier this sort of UT level gazetted posts were done through the SSC, but we have constituted our own Ladakh board which is now functional. So just I would like to give the figure to my friends from media that against 377 posts that the Ladakh Subordinate Services Staff Selection Board put to advertisement on 28th of July 2025, we have received 12,004 applications, and the last date of submitting applications is 3rd of September 2025. The DSS RB Leh, they put to advertisement around 535 posts, 34 posts, 534 posts. They have put to advertisement on 16th of July, and they have received 46,765 applications. Nearly half a lakh.
The last date was 24th of August 2025, which on public demand has been extended to 15th of September. So if that there was a demand, this means that you can have another 10,000. Then DSSRB Kargil, they had put to advertisement 374 posts. They say on the same day, that is 16th of July, the applications received is 47,312, another nearly a lakh, half a lakh, sorry, and last date was again 28th of August, and which has also been extended to 15th of September 2025. So UPSC, the biggest thing, because we have not done any recruitment as so far, of the gazetted posts. So this is very, heartening that last time I mentioned to you that the UPSC has agreed to put to advertisement 224 posts, out of which 125 was of medical officer, 67 was the lecturers, and 32 was accounts officers. So the UPSC has already put to advertisement 52 posts out of the 67 lecturers. So 15 lecturers of Urdu they will be doing within a few days. Then the medical officers post and the AO post, which is 125 and 67, we have been given to understand by the UPSC that they will be doing it by end of this month or the first week of September. So it's a big thing which is happening. So my point of mentioning is that at present we have around 1,06,000 applications which we are processing. UPSC will be doing at their own end. So we are very busy in this selection process. Not only the civil administration, the police is also busy, educating the people that that how this recruitment happens, how they should fill these forms, how they should come forward. So we are tremendously busy looking after these 110,000 youth who have filed their applications. This is our prime concern at this moment. We don't want any diversion at this moment, because it will affect the youth of Ladakh. Because we are very small community of officers, and we have time is the same. So we want to concentrate this time, devote it fully to the youth of Ladakh, so that this recruitment happens very transparent and fair manner as early as possible. So the future of the youth of Ladakh is at stake. We don't want any diversion. So these rumor mongers, we will be going after them very harsh, because it will affect the youth of Ladakh. So this rumor mongering should not happen, and this should be seen as something which is against the interest of people of Ladakh at this moment. It is a very critical moment. Our tourist season, after a shock of that that incident between our Indo-Pak, that incident, that sudden drop, and now just it is recovering, and we still have 2 months to go for tourism. So we don't want any diversion at this moment. Another thing which I noticed was that these our workers, we are very proud of our all workers, whether they are lumbardars, whether they are patwaris, whether higher officers don't need recognition, because they are supposed to self-recognize them and feel good about their work themselves. But lower officers or lower functionaries, they need encouragement. So we have been here very lucky, especially in Kargil. The lumbardars, even Leh also, the lumbardars have been in forefront of all these development efforts. But of late inputs I have received is that these lumbardars are basically the quasi-government functionaries. They are not government functionaries, certainly, because if you are a government functionary, you cannot become a lumbardar. That is in the rule. But you are highly respected person in your own community, and people look up to you for guidance. So I request and I appeal to all my lumbardars, we are very proud of them, that they should give the right guidance to the community, and this fear or alarm to the public, they should make all efforts that such things are public is not unnecessarily, no fear or alarm is created to the public, because they are our eyes and ears in the field. They are the ones who give us information, and if they go through their charter of duties,
Their charter of duties is to assist the administration, to report any untoward incident in the field, to report any encroachment on the state property to the government, because they are the protectors of the people and the government property on the ground. And certainly I said that I have never seen such a good committed cadre of Lambardars, because I have extensive experience in the field. But some of them, unfortunately, should avoid things which is not good and which is in violative of the rules. I will again just through the media, because media should also know that what we are doing and what are the rules. The rules say, Lambardari rules 9E says that duties of a Lambardar shall whatever, and then it's a huge list of 14 duties given to him. So it is the trust we put in the Lambardar. It is not that we give them 1500 and that we have some control over them. No, it is not like that. They do the work which is very highly valuable. Money is not something which is important for them. It is the recognition of the community. Even this amount of 1500 has started only 10-15 years ago, 20 years ago. Earlier, people would fight for the election of a Lambardar just because a Lambardar is a highly respected person in the community. So the section 9 of the rule says dismissal of a Lambardar. A Lambardar shall be dismissed by the collector if, I am only quoting one, that is E, he takes part in any agitation against the government or fails to give active support to the government functionary. So as they are highly respected people go after, they follow them. If Lambardar says that we have to do this, the people of village will definitely do it, because they say he is our elder, he is highly respected, so whatever he is saying is correct. So my request would be, some or few of them, if they do not know this rule, please, you are there to guide the community, to protect their interest and not to instill any fear or alarm in the public, because the administration is tremendously busy in the recruitment process. As I mentioned, 1,06,000 and some, I just give you the exact figure, 1,06,081, and it's going to increase by another 25,000. So that is, I just thought it was my duty to tell, because everybody knows that, because sometimes we unknowingly do something which we don't know that it is not permissible under law, and that is why this maxim has been laid down, because people sometimes say humko to pata nahi tha. So the maxim has been laid down that ignorance of law is no excuse. So we should not come to that stage when the law has to operate, because then we become helpless. What will I do, or what will the Tahsildar do if unnecessarily something is happening which is harming the main or diverting the main focus of the administration? So this is the purpose for which I just wanted that it should be clarified. And one more thing which I think it's important to brief about the order the Deputy Commissioner has recently issued regarding one allotment, and I will request the Deputy Commissioner, because it is something done at the under rules. As I understand, as I went through his documents, I found that the allotment order itself mentioned that it will lapse after 1 year if the university doesn't come up. So he has done nothing. He has said that this clause 4, I will brief you, that clause 4 has operated, that's all. So clause 4 has operated, which was in the allotment order itself. The Deputy Commissioner of the time, when he issued the order, he kept a provision of itself lapsing, that if it doesn't happen, that order itself lapses. So he has not done any active action. He has only recognized that clause and said that it is already lapsed, so why are we continuing it? And then let this land now go to the LHDC, now back to the LHDC. I said that is the order. So there is nothing, this is only unique case in Ladakh. There is no other such case in Ladakh, as I know the revenue. It has nothing to do with anything. The land of the people, the land which is with the people, whether it is their own ancestral land or whether the state land which is with them, it has nothing to do with it.
none of the citizen of Ladakh who has any state land, I know, because here land is very rare commodity. The agricultural land is very rare commodity, but barren land is in plenty. So anybody who is sitting over a piece of barren land, we have no objection to that. Certainly I have clarified it 100 times that we have no objection in anybody sitting on the state land, because this is the only region where Maharaja gave the special permission to occupy state land without any ceiling. You could occupy even 120 canals, 1000 canals, something, if you do the Navtod, if you do the cultivation over it. But over a period of time, some people have even constructed houses on them. So be it. We have nothing against that, because if people don't construct land on their own state land, फिर कहाँ पे मकान बनाएंगे if they need it. और इसलिए हमने कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट में चेंज किया. पहले 4 मरले था डीसी को अथॉरिटी, हमने उसको 10 मरले किया. हमने कहा 4 मरले में तो घर हो ही नहीं सकता. बन तो सकता है, 4 मरले में भी घर बनता है, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है. लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे पास जानवर भी होते हैं, तो हमने कहा ठीक है. ये बड़े डिस्कशन है, एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई सबके साथ, सब स्टेक होल्डर के साथ. उन्होंने कहा सर 4 कनाल में तो चलो घर उतना सा हम समझ सकते हैं, 4 कनाल इज नॉट, इट इज 1000 स्क्वायर फुट, तो उसमें तो घर बन जाता है. लेकिन हमारे पास जानवर होते हैं, उसका बाड़ा बनाना होता है और थोड़ा आंगन चाहिए हमको, तो हमने इसको 10 कनाल कर दिया. मतलब 3000 स्क्वायर फुट के करीब, 2750 के करीब आधा कनाल कर दिया. तो आधा कनाल कर दिया, तो आधा कनाल तो वैसे भी डीसी साहब अलॉट कर सकते हैं लीगली. और जिन लोगों ने ये ऑक्युपाई किया है नवतोड़ लैंड, जो हमारी एलएचडीसीज ने टाइम पे अलॉटमेंट की है, वी रिकॉग्नाइज देम, वो इंटैक्ट हैं. जो एलएचडीसी की अलॉटमेंट लोगों को हुई है घर बनाने के लिए, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. इसलिए मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमने बाजाफ्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एक कमिटी, वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी अंडर ए वेरी सीनियर ऑफिसर, कि भाई आप ये जो चीजें हैं, लोगों में ये फियर ना जाए कि कहीं हमारी जमीन कोई वापस तो नहीं ले रहा. सवाल ही पैदा नहीं होता, जमीन तो वापस कैसे ली जा सकती है, जमीन तो वहीं रहती है. ये तो कागजों में एंट्री का इशू होता है, जमीन तो वहीं की वहीं रहती है जिसके कब्जे में है. आज तक आपने देखा कि किसी का कब्जा, हमने जिसने घर बनाया हो उसका कब्जा रिमूव किया हो, या उसका घर को तबाही उसको किया हो, नोटिस पे डाला हो. तो घरों के लिए जो लोगों के पास जमीनें हैं, वो उनकी जमीनें हैं, एलएचडीसी ने उनको दी हैं, वो हमारे लिए वो लीगल है, उसमें कोई इशू नहीं है. ये एक यूनिक केस है जहां पे कि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो समझ लो ये लैप्स हो गया, डीम टू हैव बीन लैप्स. ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया. हम डीसी साहब कहते हैं मैंने तो ऑर्डर जो उसमें लिखा था उसको इंप्लीमेंट कर दिया और लैंड वापस एलएचडीसी को कर दी. अब इसमें तो कोई, फिर भी मैं इनको कहूंगा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें. सर, जो रिसेंट एक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू सर 21 अगस्त 2025 को हमने रिलीज किया सर, इट इज ड्यू टू मैनी कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस रिपीटेडली. लोकल पीपल्स ने रिपीटेडली मेरे ऑफिस को बार कंप्लेंट्स दी कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज और देयर वर सम एप्रीहेंशंस ऑफ द लोकल पीपल्स आल्सो. आई विल सर जस्ट रीड कि व्हाई दिस ऑर्डर वाज इशूड, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली ड्यू टू वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द ऑर्डर. सर, जो अलॉटमेंट ऑर्डर 652 रेवेन्यू ऑफ 2018 डेटेड 5/5/2018 को जो इशू किया गया था, उसमें ये साफ लिखा था कि ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए है. जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी लीज होने की या अलॉटमेंट ऑर्डर की, उसका फर्स्ट पॉइंट था द लीजी शैल नॉट सबलेट द लैंड और पार्ट देयर ऑफ विदाउट एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द लेसर. Second point था the land shall be used for the purpose for which it is allotted. The purpose was construction of university, but it was not followed, and it was there is no university that has been set up on the allotted land till date. Third point जो था वो था तहसीलदार ले will hand over the possession of the land to the concerned after executing the lease deed agreement, whereas no lease agreement has been executed in respect of the allotment land and no formal handing over and taking over of the said land has taken place through तहसीलदार ले till date. Fourth point जो था वो था the allottee shall execute the lease deed within a period of 1 year from the order. The date of the order was 5 May 2018.
failing which the allotment orders shall be deemed to be cancelled. So deemed to be cancelled is an automatic clause जो अपने आप ही प्रोविजन में आ जाता है। तो जो 5/5/2019 को ये खुद में खुद ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोविजन जो 4th पॉइंट था वो अपने आप ही डीम्ड लिखा गया था। तो इसलिए हमने इसको 5th पॉइंट जो था द लैंड शेल एस्चीट टू द स्टेट दैट इज LHDC ले इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज डीड। सो इस लैंड को हमने से फिर वापस एस्चीट किया स्टेट को जो है LHDC ले, और हमने ऑर्डर किया कि तहसीलदार ले शेल रिमूव ऑल द एनकम्बरेंस फ्रॉम द सेड पीस ऑफ द स्टेट लैंड। सर इसी के साथ सर इन कंटिन्यूएशन व्हाट यू सेड आल्सो कि हमारा जो मिशन इंडस क्लीन अप था जो हमारे LHDC ले के CEC श्री ताशी गालसन जी ने और हमारे ऑनरेबल CS श्री पवन कोतवाल सर ने जो किया था, उसमें हमारे नंबरदार हमारे जो गोपा जितने भी थे उनका हमें फुल सपोर्ट और हमें काफी उनकी गाइडेंस मिली थी कि कैसे हम इन कामों को कर सकते हैं। बाकी खाली इस मिशन इंडस क्लीन अप ही नहीं, जो हमारा DSRB का रिक्रूटमेंट चल रहा है या और भी कोई डिस्ट्रिक्ट का ले का चलता है कोई भी स्कीम या प्रोविजंस, उसमें हमारे गोबाज नंबरदार हमें फुल हार्टेड सपोर्ट करते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू नंबरदार्स वुड बी अगेन टू गाइड द विलेजेस एंड हेल्प द रेवेन्यू ऑफिशियल, जो भी ड्यूटी नंबरदारी एक्ट और नंबरदारी रूल्स में लिखी गई है सर। ठीक है, थैंक यू। तो एक दूंगा, जब हमारी यूटी बनी लद्दाख की तो हमें लगभग हमारे पास पहले कोई एग्जैक्ट फिगर हमारे दफ्तर में है, मैं जस्ट मीडिया के फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा कि लगभग 15,500 के करीब हमारे पास एम्प्लॉई जो थे जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो JNK गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। हम सब पहले जब ये अभी नया यूटी का क्रिएशन नहीं हुआ था तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ लद्दाख में जाना चाहते हैं नई यूटी में या JNK में रहना चाहते हैं। तो जाहिर बात है जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ पे अपोर्शन हो गए, लगभग 15,200 समथिंग इज अप्रोक्सीमेट फिगर। तो वो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं और वो अपोर्शन हो गए हैं, वो काम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो हमें स्ट्रेंथ मिली वो बिल्कुल कम मिली। 11 थाने, सिर्फ इतने बड़े यूटी में सिर्फ 11 थाने। 11 थानों में अब हमारा टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, फॉरेनर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको इतनी डेस्टिनेशन हमारी जो सिर्फ लेह के अंदर या कुछ थोड़ी सी जगहों पे थी, अब हमने ऐसे लगभग 30 के करीब हमने नए रूट खोल दिए। लोग उन रूट्स पे जा रहे हैं, उन डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं और खूब सारी संख्या में जा रहे हैं। उन सबको एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वहां उनके साथ कुछ ना हो जाए या एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए हमने एक डिटेल प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ जो अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन पेंडिंग दैट हमारी इतनी थिन फोर्स है कि हम जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है कि क्या हम ये रूट खोलें, मतलब हम तो चाहते हैं हमारे सारे रूट खुल जाएं, जो ट्रैकिंग के रूट हैं, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के रूट हैं, सारे खुल जाएं। तो जब हम ये हमारे पास ये क्योंकि हमें वो क्लियरेंस जो है वो हमें MHA से लेनी होती है, तो उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम ये रूट जो आप कह रहे हो 40 किलोमीटर का हम ये खोल दें, मगर क्या आप इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे? क्योंकि उस पे लोकल भी जाते हैं जो इंडियन टूरिस्ट हैं और फॉरेनर्स भी जाते हैं, और फॉरेनर्स को आपको मालूम है कि फॉरेनर्स का पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो वहां हमको ये लिखना मुश्किल हो जाता है कि यस वी विल, क्योंकि हमारे पास वहां पोस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, पुलिस लानी पड़ेगी। तो हमारी बहुत ही थिन पुलिस स्ट्रेंथ है, जिससे जो हमारे किसी भी, जैसे हमारे यहाँ कोई अभी एपिसोड हो जाता है तो हमने UTDRF को मंगाया हुआ है 20, हमको तो एक बटालियन चाहिए UTDRF की, अभी हमारे पास सिर्फ 22 आदमी है। कितना ज्यादा हमारे पिछले दिनों यहाँ पे अभी भी चल रहा है, मतलब कितने ज्यादा फ्लड्स आए, कितने ज्यादा वो हमारे पास डिजास्टर हुआ, तो उसमें हमारे UTDRF के अपने जो स्ट्रेंथ है उससे हमें जो NDRF के लोग हैं 22 के करीब वो भी आए, लेकिन हमें एक बटालियन चाहिए। उसी तरह हमको अपने पुलिस के अलावा हमें भी, अगर जब तक हमारी अपनी नहीं होती, हमें कोई कंटिजेंट बाहर से तो लाना पड़ेगा, चाहे CRP हो चाहे और कोई फोर्स हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फोर्सेस का जो हमारे पास कमी है, हम उसको कभी कभी कहीं से भी जहां से हमें मिलती है हम उसको इसलिए रखते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीजन चल रहा है, हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर भी हो जाए। तो अब लॉ एंड ऑर्डर में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप इल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर बात है कोई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर बात है कोई कुछ नहीं होगा। उसको हम कहते हैं जिस तरह आर्मी फ्लैग मार्च करती है, उसका पर्पस क्या होता है?
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक, क्योंकि जिसने शरारत करनी है वो इंटेंशनली करता है। whoever wants to create mischief, it is through intention। ये नहीं कि वो उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो ऐसे मिस्चीवियस एलिमेंट्स को जब डील करता है लॉ एंड ऑर्डर, तो जिम्मेवारी हमारी ही बनती है। तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो जब हमको शक लगता है कि कहीं इतना टूरिस्ट सीजन आ रहा है, इतना टूरिस्ट हमारा अच्छा चल रहा है, इतना हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है, इतना हमारा सब इतना अच्छा पॉजिटिव है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमको अपना भी तो सिस्टम जो है उसको हमें रखना पड़ता है। तो मैं डीजीपी साहब से कहूंगा, क्योंकि अभी रूमर मैंने ये भी सुनी, अभी मुझे मैसेज किसी ने भेजा कि वो जी आर्मी पुलिस आ गई है और इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अंदेशा है होने वाला है। तो मैं डीजीपी साहब को कहूंगा कि थोड़ा इसको क्लैरिफाई करें। सीएस साहब ने बताया, मैं सभी मीडिया फ्रेटर्निटी का वेलकम करता हूं। आप जानते हैं कि आज हम एक शॉर्ट नोटिस पे के बाद मिल रहे हैं, और जैसे सीएस साहब ने कहा कि मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं यूटी एक नई एंटिटी है हमारे लिए लद्दाख की, और जिस हिसाब से यूटी एक्सपेंड की है, हमारे जितने डिपार्टमेंट बने हैं और जितना जैसे टूरिज्म एक्सपेंड हो रहा है, जो हमारे पुलिस रिलेटेड चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो हमारी काफ़ी 2 साल से ऊपर तो मुझे हो गए आगे यहाँ आए हुए, और हमारा 2 साल से ज़्यादा एक गवर्नमेंट के साथ एक हमारी कम्युनिकेशन चल रहा था, और हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करके और बड़ा जोर लगा के हमने कुछ ना कुछ हम मैन पावर हम लेना चाहते हैं। एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए जिसमें सारा कुछ हो, जिसमें हमें डिज़ास्टर निपटना हो, जिसमें हमें लॉ एंड ऑर्डर के, जिसमें हमें क्राइम कंट्रोल करना हो, टूरिज्म देखना, उस सब के लिए हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की। उस सिलसिले में हमारे कुछ फोर्स आना शुरू हुई है। अभी ये फोर्स आना शुरू हुई है, हमारे जो रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बड़ी वी आर रियली थैंकफुल कि हमें कम से कम, जैसे आप जानते हैं हिज होलीनेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और 30-40 हज़ार जो पहले एक ही दिन में जब उनका समन्स हुए, उस दिन का हमने जो बंदोबस्त था वो इट वाज अ मैसिव एक्सरसाइज। तो वी वर स्ट्रेच टू आवर लिमिट्स। तो हमने बड़ी कोशिशों के बाद हमारे पास मैन पावर आगमेंट हुई है। ये मैन पावर हम यूज़ कर रहे हैं हमारी नॉर्मल बंदोबस्त ड्यूटीज़ के लिए, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इन्हीं दिनों में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे हमारे पास बड़ी कंप्लेंट थी, गोमपास में चोरियां हो रही हैं, कहीं कहीं दूर दराज इलाकों में चोरियां वगैरह हुई। तो अभी हमारे पास जो फोर्स है, ये बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हम अब बेटर मोबिलाइज कर रहे हैं अपने आप को, और नाइट डोमिनेशन वगैरह कर रहे हैं। पिछले दिनों में ही हमने 3-4 चोरियों की घटनाएं निकाली हैं, और कल ही एक 22 ग्राम हेरोइन जो है वो हमने इसी प्रोसेस में हमने जब्त की है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा एम जो है वो पूरे लद्दाख को सिक्योर करना है। लद्दाख की सिक्योरिटी, यहाँ की सिटीजन की सिक्योरिटी, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी, वो हमारा परमानेंट जो सबसे पैरामाउंट हमारा जो एम है वो वही है। हम ट्रेडिशनली लद्दाख लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, क्राइम कंट्रोल करते हैं, और अभी तक हमें किसी भी किस्म से ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। लद्दाख के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। प्रिवेंशन हो, नावल बंदोबस्त ड्यूटीज़ हो, किसी किस्म का अरेंजमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो। इससे पहले जैसे सीएस साहब ने बताया, जैसे ही एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि हमारी जो जॉब्स निकली हैं, पुलिस की तरफ से हमने एक एफर्ट लगाया। हर पुलिस स्टेशन लेवल पे हमने लोगों को, जो हमारे यूथ हैं, उनको एक गाइडेंस देने के लिए हमने वहाँ पे कोचिंग के लिए ओवरऑल एक उनकी पेप टॉक, उनको एक कोचिंग कैसे करनी है, किस किस एग्ज़ाम देने हैं, उसके बारे में हमने ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे फायर सर्विसेज है, फायर सर्विस का बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ नहीं था। अब मैं एज ए डीजी हूँ, मैं एज ए डीजी फायर सर्विस भी एक्ट कर रहा हूँ, पर मेरे पास उतनी मैन पावर नहीं है। हम जहाँ पे जाते हैं सबसे पहले हमारे डिमांड आती है कि हमें फायर टेंडर दीजिए या फायरमैन दीजिए। अब फायरमैन सैंक्शन सिर्फ 2 हैं पूरे उसके लिए, एक लेह और करगिल। इसके अलावा बाकी जगह पे दराज, सांकू या यहाँ पे हम जहाँ देना चाहते हैं, ये हम अपने जो रेगुलर पुलिस वाले हैं उनको ट्रेन करके हम उनको एडिशनल ड्यूटी दी हुई है, और हम अपने फंड्स को यूज़ करके नए नए फायर टेंडर बना रहे हैं। क्यों? आसान काम नहीं है। पहले आप पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे, फिर उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, फिर सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के बाद जब ट्रेन हो गया आएंगे लॉजिकली, तो उस टाइम आपको आप कोई फायर सर्विसेज का कोई कंसेप्ट दे सकते हो। पर क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हमने पर्सनली जाके दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट करके वहाँ से ट्रेनिंग करवा के हमने वो लोग लाए। और जब तक वो लोग आए तब तक हमने अपनी रेगुलर पुलिस वालों को फायर सर्विस की ट्रेनिंग देके
किसी तरीके से काम चलाया। ये बात जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा हम किस कंस्ट्रेंट में काम करते हैं, क्योंकि बजट का इशू होता है। फायर टेंडर जो है वो किस कंपनी से बनाना, उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना बहुत लंबा पेपर वर्क होता है, पर फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को। जैसे आपने बताया पुलिस की आर्गुमेंटेशन हमारी और भी होने वाली है, पर ये जो एडिशनल फोर्स ये हमने बड़ी मुश्किल से कह के बड़ी मिन्नतें करने के बाद ये हमें फोर्स मिली है, जिससे कि हम ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सर एक चीज़, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला जो है काफ़ी पेचीदा हो रहा है सर, खासकर लद्दाख एक छोटा सा जगह है सर, यहाँ पर 3 रोड है सर, 2 रोड है सर, एक बाय एयर है सर, तो ये लैप्स कहाँ हो रहा है सर? अब देखिए, अब जैसे CS साहब ने बोला 1 ग्राम का ड्रग, अब रोड तो आपकी है, पर कोई शेफर्ड अगर हिमाचल से कहीं से बाई क्रॉस कंट्री आके चला जाएगा लेके आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते ना उसका। हमने अपने जो डॉग स्क्वाड्स हैं वो मीनावर में भी लगाए हुए हैं, सरचुबे में लगाए हुए हैं, हम हर चीज़ का कर रहे हैं। पर छोटी सी ड्रग को लेके आना, और यहाँ पर देखो टूरिस्ट हैं, यहाँ पे लद्दाख स्कूल्स हैं, यहाँ पे आर्मी है, कितने लोग हैं, उसमें हो सकता है कई कंज्यूमर होंगे ड्रग्स के, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज करते हैं ये भी। और कल भी जैसे मैंने बताया हमने पकड़ा है, ठीक है, और हम लगे हुए इसके पीछे, और पीछे भी उससे पहले भी हमने कई बार इसमें किया हुआ, और इसमें हमें चाहिए सोसाइटी वो ड्रग से। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो सब लोग अच्छे लगते हैं, मतलब क्योंकि जो माहौल है यहाँ, तो मैंने कहा तो ऐसा ड्रग का माहौल मुझे लगता नहीं ओपन सी, लेकिन वो कहते हैं कि आपको बाहर से ऊपर से ये ठीक लगता होगा लेकिन डेंजर है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं सारे सिटीजन्स को इसके थ्रू थोड़ा सा उनकी बात आपसे भी उनसे भी शेयर करूंगा, और उसके ऊपर भी हमें काम करना है। वो कहने लगे जी लोग जो हैं 1 ग्राम तक लाते हैं, 1 ग्राम तक भी लाते हैं, मतलब 1 ग्राम कहते हैं लोग लाते हैं जम्मू से या हिमाचल से 1 ग्राम, एंड देन दे से दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 40 डोजेस, और 1 ग्राम की कीमत 5000 होती है जम्मू में, और 40 डोजेस की कीमत इज लाइक लुकिंग फॉर ए नीडल इन ए हेयरस्टाइल। तो इतने प्रेशर में है, लेकिन हमें ये भी डील करना है, तो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इसीलिए मिनिमम फोर्स का होना सारी सोसाइटी के लिए, सारे लद्दाख के लिए हमारा बहुत जरूरी है। इसका कोई इंटरप्रिटेशन जो है मैं आपको गारंटी देता हूं, इसका प्लीज कोई और इंटरप्रिटेशन कोई भी आदमी इससे जो है वो तशवीश में ना आए, क्योंकि जनरली एक पीसफुल एरिया है, यहाँ पे लोगों ने पुलिस देखी नहीं है। जैसा मतलब मैं सैकड़ों साल की बात करता हूँ, 100 साल की, 2 साल की, तो जाहिर बात है कि पीसफुल इलाके में कई बार लोगों को ये लगता है कि अचानक कोई अगर नंबर आ गया तो उसका कोई, तो मैं आपको 100% एश्योर करना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ के जो इलेक्टेड CC साहब हैं 2 वो हैं, मैं हूँ, DGP साहब हैं, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है नहीं होता है, जैसा मैं समझता हूँ DGP साहब यही है, तो ये होता है। तो इसलिए मैं हर एक ये, बल्कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हमारी ये फोर्सेस होती हैं, हमेशा से हैं। और हालांकि हम तो लद्दाख में सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ का पीस जो है यहाँ के लोगों से है, लेकिन शरारती एलिमेंट भी होता है, तो हमें उसके साथ डील करने के लिए भी हमें जरूरी होता है। और इसीलिए जो है ये पुलिस, हम बहुत शॉर्ट स्टाफ्ड हैं, बहुत शॉर्ट स्ट्रेंथ है हमारी पुलिस की हमारे पास, इसलिए हमें रीइंफोर्समेंट या सप्लीमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड हमारे लिए मैंडेटरी हो जाती है। जैसे DGP साहब ने कहा कि जब हिज होलीनेस आते हैं या कोई और भी आ जाता है, कोई फंक्शन होता है या कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें प्रोटेक्शन देने के लिए अपना आर्गुमेंटेशन करना पड़ता है। तो इसको कोई और मत रीड करें कि ये कोई ऐसा इसलिए आ रही है कि कुछ होने वाला है, कोई सख्त काम होने वाला है, ये सब रूमर्स है। तो रूमर मंगरिंग से भी मैं वही कह रहा हूँ कि उस चीज को जरूर सिटीजन जो है वो एश्योर्ड रहे कि भाई हमको तो DGP साहब ने बता दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बता दिया, DC साहब ने बता दिया, ये आप जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। और फिर भी अगर आपके माइंड में ये शक होता है तो आप मेरे से बात कर लीजिए, DGP साहब से बात कर लीजिए, DC साहब से बात कर लीजिए कि हम ये सुन रहे हैं। रूमर बताता है जिससे आपको तशवीश होती है, जिससे आपको परेशानी होती है। फील फ्री टू टॉक टू योर SHO, feel free to talk to your SDM, feel free to talk to your DC, और उससे क्लैरिफिकेशन लीजिए कि हम ये सुन रहे हैं जनाब, क्या मसला है। इसलिए मैंने शॉर्ट नोटिस पे मैं यहाँ आया था और DC साहब यहाँ आए, हमारी कल MHA में कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें आज, लेकिन सडनली जब हमने ये रिपोर्ट्स इस पे देखी तो 2 दिन पहले भी जब हमें वो रिपोर्ट, मैंने पहले बताया DGP साहब को कि जो पहले रूमर एक राउंड चला था, तो उसके बाद हमने सोचा कि हम आपको एड्रेस करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, पब्लिक को एश्योर करें कि ये देयर इज नथिंग अनयूजुअल हैपनिंग।
तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहें, चाहे वो लैंड हो उसके लिए बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड रहें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो उसके लिए रेस्ट एश्योर्ड रहें। हम आपके लिए यहाँ पे हैं, आपकी बेहतरी के लिए, और आपकी चाहे वो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, चाहे वो लैंड के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एक यूनिक केस को आप दूसरे के साथ नहीं लगा सकते हैं, ये एक यूनिक केस है जिसके बारे में टीसी साहब बता रहे हैं। अब मैं आई जस्ट आस्क द मीडिया people that if they have any queries to the DGP साहब or to me, so we can have, then I think we can close the conference and the media जो PhD स्कॉलर्स है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कंसर्न रेज किया है सर, जिसमें खासकर कि PhD को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे हैं करके, जिसमें B.Ed एलिजिबल रखा गया है। और सेकंड चीज सर की जिस तरह से लद्दाख के लिए जो अभी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी बना है जिसमें 95% जो है रिजर्व्ड हैं, तो उनका कहना है कि कॉलेजेस के रिक्रूटमेंट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल कोर्सेज के रिक्रूटमेंट में स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो if I have got you correctly, लेक्चरर दो किस्म के रिक्रूटमेंट है। इफ दे आर ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का एक अलग यूजीसी का अपना नॉर्म रहता है रिक्रूटमेंट का। लेकिन इफ दे आर ए पार्ट ऑफ द लेक्चरर्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, द रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाइज 100%। There should be no confusion। का एक सक्सेस स्टोरी है मेरे संदू, हमारी जो टीम कश्मीर से और वहाँ से सामान चोरी हुआ वो लेके आके हमने किया है। मैक्सिमम चोरी के केसेस जो हैं वो हमने ट्रैक किए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मोनेस्ट्रीज में देखिए, हमारा जैसे सीए साहब ने भी कहा, हमारी लिमिटेड स्ट्रेंथ है। मोनेस्ट्रीज जो हैं फार फ्लंग एरियाज में हैं। बेटर हमारे पास जो भी आता है, हम मोनेस्ट्रीज के जो मेरे पास जो लोग आए, जो उनके जो भी थे सीनियर वहाँ पे मोनेस्ट्री मैनेजमेंट के, हमने बोला कि हम ये हेल्प कर सकते हैं ज़रूर कि अगर आपके पास कोई लद्दाख कोर्स का या कोई ट्रेंड आया तो उसको दे दो, हम एसपीओ की अगर पोजीशन होगी तो हम उसको एसपीओ रिक्रूट करेंगे, और वहाँ पे सीसीटीवी लगाना वो हम लगा देंगे। बट मोनेस्ट्रीज की मैनेज करना, वो कम से कम एक आदमी आपका रहना चाहिए। अगर आप एक सोचते हैं कि हम एक पुलिस वाला लगा देंगे, वहाँ पे आपकी अपनी मैनेजमेंट का आदमी नहीं हो, तो इनफैक्ट उसके ऊपर भी अगर कोई चोरी अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो क्रॉस चेक होना मुश्किल है। आपका एक आदमी, क्योंकि आप ही की मोनेस्ट्रीज में जो जितनी भी उनका जो ट्रेजर है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि या तो बारी बारी से पूरे गांव में, अगर आप महीने में किसी का एक दिन का नाइट ड्यूटी वहाँ पे आ जाए, तो यू शुड हैव दैट अरेंजमेंट। उसको आर्गूमेंट यहाँ जैसे करना है, अगर सीसीटीवी लगाना है हम पुलिस की तरफ से लगा देंगे। अगर आपको उस एरिया में कोई भर्ती करनी है, हमारे पास एसपीओ की अगर वैकेंसी होगी, हम कोशिश करेंगे किसी को ट्रेंड जो लद्दाख कोर्स का आदमी है उसको हम लगा के कर दें। पुलिस एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने रिक्रूटमेंट जारी रखी है। आप इससे पहले देखोगे रिक्रूटमेंट अगर हुई है तो पुलिस ने की है, ठीक है। मैंने पर्सनली यहाँ पे जब अस्ट जे स्टेट थी तब भी मैं रिक्रूटमेंट करने यहाँ पे आया था। तो पुलिस की रिक्रूटमेंट, अभी हमारे रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग करने गए हुए हैं वो ट्रेनिंग करके आने वाले हैं, वो भी आर्गूमेंट होगी। आप समझ सकते हैं कि जो एरिया लद्दाख का है वो पूरे जम्मू कश्मीर से भी डबल से भी ज्यादा है। इतने एरिया को मैनेज करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत है। और जब स्टेट बाइफरकेट हुई, हमारे पास नंबर कम आया, हम किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ कि नए नए काम जो है पुलिस को मिलते रहते हैं। टूरिस्ट पुलिस पर पहले कंसेप्ट नहीं था, अब टूरिज्म पुलिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया, ठीक है। अभी एक और चीज है, आपको शायद पता नहीं है कि यहाँ पे जैसे फायर सर्विसेज है, फायर सर्विस का बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ नहीं था। अब मैं एज ए डीजी हूँ, मैं एज ए डीजी फायर सर्विस भी एक्ट कर रहा हूँ, पर मेरे पास उतनी मैन पावर नहीं है। हम जहां पे जाते हैं सबसे पहले हमारे डिमांड आती है कि हमें फायर टेंडर दीजिए या फायरमैन दीजिए। अब फायरमैन सैंक्शन सिर्फ 2 हैं पूरे उसके लिए, एक लेह और करगिल। इसके अलावा बाकी जगह पे द्रास, सांकू या यहाँ पे हम जहां देना चाहते हैं, ये हम अपने जो रेगुलर पुलिस वाले हैं उनको ट्रेन करके हम उनको एडिशनल ड्यूटी दी हुई है, और हम अपने फंड्स को यूज करके नए नए फायर टेंडर बना रहे हैं। क्यों? आसान काम नहीं है। पहले आप पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे, फिर उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, फिर सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेन होके आएंगे लॉजिकली, तो उस टाइम आपको आप कोई फायर सर्विसेज का कोई कंसेप्ट दे सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हमने पर्सनली जाके दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट करके वहां से ट्रेनिंग करवा के हमने लोग लाए। और जब तक वो लोग आए तब तक हमने अपने रेगुलर पुलिस वालों को फायर सर्विस की ट्रेनिंग देके किसी तरीके से काम चलाया। ये बात जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा हम किस कंस्ट्रेंट में काम करते हैं, क्योंकि बजट का इशू होता है। फायर टेंडर जो है वो किस कंपनी से बनाना, उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना बहुत लंबा पेपर वर्क होता है, पर फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हर चीज को। जैसे आपने बताया पुलिस की आर्गुमेंटेशन हमारी और भी होने वाली है,
पर ये जो एडिशनल फोर्स ये हमने बड़ी मुश्किल से कह के बड़ी मिन्नतें करने के बाद ये हमें फोर्स मिली है, जिससे कि हम ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आपने बोला 1 ग्राम को ड्रग, अब रोड तो आपकी है, और कोई शेफर्ड अगर हिमाचल से कहीं से बाई क्रॉस कंट्री आके चला जाएगा लेके आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते ना उसका। हमने अपने जो डॉग स्क्वाड्स हैं वो मिनावर में भी लगाए हुए हैं, सर्च में भी लगाए हुए हैं, हम हर चीज का कर रहे हैं। पर छोटी सी ड्रग को लेके आना, वो यहाँ पे तो टूरिस्ट हैं, यहाँ पे लद्दाख स्पोर्ट्स है, यहाँ पे आर्मी है, कितने लोग हैं, उसमें हो सकता है कई कंज्यूमर होंगे ड्रग्स के, तो हम अपने लिमिटेड सोर्सेज में मैनेज करते हैं ये भी। और कल भी जैसे मैंने बताया हमने पकड़ा है, ठीक है, और हम लगे हुए इसके पीछे, और पीछे भी उससे पहले भी हमने कई बार इसमें किया हुआ। पर इसमें हमें चाहिए सोसाइटी। देखिए सोसाइटी इसमें काम नहीं करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। जिस घर में जो बच्चा लेता है घर वालों को पता है, पर घर वाले यहाँ तो उसमें उनके पास टाइम नहीं है उसको कंट्रोल करने का, अगर उनको पता भी है वो बताते नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम है। तो मेरी तरफ से एक अपील है पेरेंट्स को भी, सबको, ये सोशल प्रॉब्लम है। हम डी एडिक्शन सेंटर भी शुरू करेंगे। मैं जम्मू जब JNK में था, हमने डी एडिक्शन, आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर इन द स्टेट जिसने 2005 में पहला डी एडिक्शन सेंटर अपने फंड से हमने पुंछ में शुरू किया था। तो इस तरीके से हम यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें चाहिए पुलिस का, लोगों का साथ। अगर लोग साथ आएंगे तो हम ये इवेल खत्म कर देंगे। स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है सर, छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए पुलिस महकमा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास लिमिटेड मैन पावर, जितना हम करेंगे। अब पुलिस अगर स्कूल्स में कर रहे हैं तो उसमें स्कूल के टीचर या उनका स्टाफ है, उनका भी तो फर्ज बनता है कि अगर स्कूल का बच्चा है, ये सारी प्रॉब्लम घर से शुरू होती है। पेरेंट्स को पता होता है पर वो उस बात को छुपाते हैं। अगर उसको छुपाएंगे नहीं, बच्चों पे कंट्रोल रखेंगे, बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने पैसे उसके पास है, उस पर कंट्रोल करना ही घर। और ये देखिए ये बात है लेह में ज्यादा है, करगिल में आज ये मैंने कम है। इसका प्रॉब्लम है कि हमारे लेह के लोग जो सोशल, आपका जो घर का माहौल है, UTDRF का जैसे 20-22 लोग से मैनेज कर रहे थे। पर अगेन बिकॉज हमें पता था कि यहाँ पे चैलेंज बहुत बड़ा है, हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वहां के DG साहब से बात टेकअप किया होम मिनिस्ट्री से करके। अब हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है NDRF का है, वो हमारे पास आया हुआ है, तो हमारी जो कैपेसिटी डबल हो गई। इनफैक्ट दे आर मोर ट्रेंड देन इवन UTDRF। तो जैसे आप बताया, बिकॉज मैं IG जम्मू रहा हूँ, हमारे पास लोकल वॉलंटियर से, खासकर वहाँ पे एक्सीडेंट का बड़ा मसला रहता था रामबन एरिया में, बटोत वगैरह में, तो वहाँ अपने लोकल लोगों को हमने ट्रेन करवाया था, उनको हमने किसी स्कीम्स के थ्रू DC साहब के थ्रू हमने इक्विपमेंट प्रोवाइड किया था। ऐसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे वॉलंटियर हमारे पास आएंगे वो भी वॉलंटियर हमेशा आते हैं। हम उनको, अगर जो भी किसी को टेक्निकल चीज़ों की जरूरत है,